So let's be in continuity. Events tries O level, lesson 7. So toughest chapter, and I think you people are studying hard to understand each and every meaning, because very hard vocabulary is there so far as this chapter is concerned. So start today's assignment enthusiastically. Let us. So we had done up to that particular point that McCleary's inspection was also done, यानी कि उसकी भी तलाशी ली गई थी मैक्लेरी की। तो जैसे ही तलाशी लेते वक्त एक हार्ड सी चीज मिली थी, वो तो उसने कहा था कि ये मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं। अब आई थिंक उसका जो ब्रीफ केस था, उसकी जब चेकिंग हुई, उसकी जब तलाशी लिया गया, तो उसमें एक ऐसी चीज थी जो परेशान कर रही थी किसको, जैक्सन को। जैक्सन वाज इरिटेटेड टू लुक एट smallish semi-inflated rubber ring which was there in the briefcase of McLean. And he was not satisfied to look at this particular rubber ring. I had already told you inflated होता है, जिसमें कुछ भरा होता है, fully you have to look at that. तो such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled. और वो बहुत छोटी सी रबर रिंग थी, सेमी होता है, सेमी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, सेमी सर्कल जिसका बनता है, तो उसमें इतनी छोटी थी कि उसमें वो जो 14 ईयर का जो छोटा सा बच्चा है, उसकी कमर पे भी फिट नहीं हो सकती। Actually, why this particular sentence is used, you might be able to recognize the activity of swimming. जब स्विमिंग करने के लिए जो हमें बेसिक मटेरियल या इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, रबर ट्यूब भी होती है। तो इसलिए ये हाईलाइट किया गया है कि वो एक छोटे से बच्चे के जो वेस्ट पे भी फिट नहीं आ सकती थी। इट वाज वेरी स्मॉल, यानी कि इट वाज अबाउट 12 इंचेस। तो जस्ट लुक एट द डायलॉग ऑफ जैक्सन। You thinking of going for a swim, sir? Just look at the dialogue asked by Jackson to McCleary. सर क्या बात है, इस ड्यूटी के बाद आप क्या स्विमिंग करने जा रहे हो, स्विमिंग एक्टिविटी करनी है क्या, ये प्लानिंग है आपका नेक्स्ट? जस्ट जोकिंग। तो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या बात है, ये ट्यूब क्यों लाए हो, ये रबर रिंग, क्या अगला प्लान आपका स्विमिंग करने का है? आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। जबकि उसको ये छोटी थी कि वो जो रबर रिंग है इतने बड़े इंसान के लिए यूटिलाइज नहीं की जा सकती थी, इवन स्विमिंग पर्पस के लिए। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि छोटे बच्चे को भी पूरी ना आए, क्योंकि इट वाज जस्ट 12 इंचेस। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर। तो वो यहाँ उन्होंने इंक्वायरी की कि क्या बात है सर, नेक्स्ट प्लानिंग आपकी स्विमिंग एक्टिविटी का है, तो इसलिए लाए हो ये रबर ट्यूब। आई थिंक क्लियर। McCleary, hitherto amiable demeanor, was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry, and he answered Jackson somewhat solely. If you must know, I suffer from hemorrhoids, and when I'm sitting down for any length of time, just look at this paragraph. Number of tough words are there. First of all, note down the meanings of tough words. So, start करते हैं. We are just starting. You have to look at
आकाश सर क्या नेट प्रॉब्लम है इधर से? हेलो, तो ये बंद हो गया ना चलते चलते, क्या बात है? पता नहीं, तो बीच में रुक गया यहाँ से, यहाँ पे मेरी तरफ से ट्रबल होगी। जस्ट आई एम रीस्टार्टिंग इट। थैंक यू, थैंक यू सर। So, due to technical problem, there was a little bit trouble in that. Now let us be in continuity, dear students. Now just look at the second paragraph. तो number of tough words आ गया. You have to look at the meaning. तो हम ये pleasantry, just note down the meaning of pleasantry. Just to entertain somebody with some fun. यानी हंसी मजाक की बात करने को बोलते हैं. तो just look at tasteless. यहाँ पे इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली मीनिंग ऑफ टेस्टलेस you have to note down that is बेकार. Now just look at the meaning of ruffled. Ruffled means बेकार, useless. Now one more tough word, that is demure. Demure क्या होता है? You have to look at the things. आउटर बिहेवियर जो हम हाईलाइट करते हैं या कोई भी हाईलाइट करता है उसको डेमिन्यूर बोला जाता है. एमिएबल होता है बेटा फ्रेंडली. And note down the meaning of hitherto also. Hitherto होता है अब तक. I think able to look at the meanings of all tough words so far as this paragraph is concerned. Particularly this sentence is concerned. Now listen the explanation of this sentence. McCleary. Hitherto amiable demeanor. So temperament या attitude और behavior of McCleary जो पहले कैसा था यानी कि अब तक कैसा था, बहुत फ्रेंडली था, वह स्लाइटली रफल्ड यानी थोड़ा सा खराब हो गया. बाय दिस टेस्टलेस लिटिल प्लेजेंटरी. टेस्टलेस मैंने कहा ना कि बेकार से. और ये छोटा सा जो एंटरटेनमेंट हाईलाइट किया था जैक्सन ने कि हाँ सर क्या बात है स्विमिंग के लिए जा रहे हो. मिकलरी का जो एटीट्यूड था was converted into negative behavior. यानी उसके जो टेम्परामेंट में चेंज आया. एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवट सोरली. थोड़ा सा इरिटेशन में आंसर दिया. सोरली होता है इरिटेशन. जैक्सन को उन्होंने इरिटेशन में आंसर दिया कि इफ यू मस्ट नो आई सफर फ्रॉम hemorrhoids and when I'm sitting down for any length of time. Answering irritation is आपको पता है कि I'm suffering from hemorrhoids. Hemorrhoids होती है बेटा piles. Piles you are able to understand. कहते कि मैं अगर ज्यादा देर कहीं बैठूं तो मुझे ट्रबल होती है. यानी कि वो हाईलाइट कर रहा है कि मेरे लिए बैठना बहुत मुश्किल होता है तो मुझे रबर रिंग की जरूरत होती है. So I think crystal clear up to this particular point. Again, I am highlighting this particular paragraph. It is full of very tough words and automatically toughest paragraph in this particular chapter. देखिए अगर इसकी ज्वाइनिंग किया जाए हमें इस पॉइंट से करना है जब जैक्सन ने कहा था कि सर लगता है कि इस एक्टिविटी के बाद आप क्या स्विमिंग करने जा रहे हो. मैक्लेरी का जो टेम्परामेंट था वो नेगेटिव हुआ सुन के. अजीब सी एंटरटेनमेंट किया था. प्लीजेंट्री का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हंसी मजाक का कोई भी अगर कोई बात करते हैं तो उसमें जैक्सन को आंसर दिया मैक्लेरी ने इरिटेशन में. एक कि अगर आपको पता हो कि मैं डिजीज प्रोन हूँ. क्या डिजीज है मुझे? पाइल्स का. मैं बैठ नहीं सकता बिना रबर ट्यूब. He wanted to highlight that particular point. तो I think you're crystal clear. एक वर्ड हो रहा है by e. बेटा अब ये वर्ड जो है वो नहीं यूज किया जाता. ये जो पुरानी इंग्लिश थी उसमें यूज किया जाता था. तो पुराने चैप्टर लिखे हुए होंगे तो यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर वर्ड. लेकिन आज ये ye वाला जो वर्ड है has been deleted from this particular vocabulary of English. I think crystal clear. ये चैप्टर बहुत पुराना लिखा हुआ है तभी इसमें है.
I think crystal clear. There is no doubt in that. Now just look at the reply of Jackson here. Very sorry, sir. I didn't mean to. Because here Jackson was just expressing his sense of regret and feeling sorry कि सर गलत हो गया, गलत बोल दिया मैंने, सॉरी मुझे पता नहीं था कि आपको पाइल्स का डिजीज है. Embarrassment was still reddening Jackson's cheeks when he found the paper knife at the bottom of the case. I think better keep this though if you don't mind. That is just look at this sentence. तो जैसे ही मिक्लरी इरिटेशन में बोले थे कि मुझे ये पाइल्स का डिजीज है, जैक्सन वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड. फील हुआ था कि किसी की बीमारी का उसने फन क्रिएट किया कि ये रबर ट्यूब क्यों ली हुई है, जबकि जैक्सन को भी नहीं पता था कि ये डिजीज है. आई थिंक वी आर क्रिस्टल क्लियर अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. एम्बैरेसमेंट बेटा अपने मन से उठती है, ये कोई किसी की इंसल्ट नहीं होती, ये हम अपने लिए ही यूज कर सकते हैं इस वर्ड को. अगर हम खुद फील करते हैं अपनी रीजनिंग पावर यूज करके कि हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया, या मेरा एटीट्यूड कहीं गलत था, तो आई थिंक यू आर एबल टू लुक एट दिस वर्ड एम्बैरेसमेंट. तो इतना इंसल्ट फील कर रहा था जो जैक्सन था, उसकी जो चीक्स थी रेड हो चुकी थी हेसिटेशन के कारण, उस फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट के कारण. और अभी भी सर्च कर रहा था, यानी कि अभी भी इंस्पेक्शन जो थी हो रही थी किसकी, मैक्लेरी की और इवेंस के सेल की. तो अब क्या हुआ आगे, जब जैसे ही वो एम्बेरस फील कर रहे थे, उन्होंने देखा एक पेपर नाइफ पड़ा था एट द बॉटम ऑफ द केस. केस का मतलब ब्रीफ केस जो मैक्लेरी जी लेके आए थे, तो उसके नीचे एक पेपर नाइफ पड़ा था. तो क्या इंस्ट्रक्शन चाहते थे वो मैक्लेरी से इस पॉइंट पे. जैक्सन जी ने मैक्लेरी जी से पूछा कि आई थिंक बेटर कीप दिस. कहते कि मुझे लगता है कि ये मैं ले लूं, यहाँ से उठा लूं. इफ यू डोंट माइंड दैट इज सा, कि अगर आपको बुरा ना लगे. यानी वो जो वहां पे नाइफ पड़ा था उनके ब्रीफ केस के नीचे, वो परमिशन मांग रहा है जैक्सन कि मैं उठा लूं सर, क्योंकि उनको डर था कि कहीं इवेंस उसी को मिसयूज ना कर दे. वेरी criminal type of person. So I think crystal clear, there is no doubt in this particular paragraph. Now look at the next. It was 9:18 a.m. before the governor heard their voices again, and it was clear that the examination was going to be more than a little late in getting underway. I think you are able to understand this particular point. Still, it is my moral responsibility to explain. The paper was to be started at 9:15 a.m. I have studied early part of this particular lesson. जो पेपर कमेंस कितने बजे होना था, 9:15 पे. Now the time was 9:18 a.m. 3 minutes more than the expected schedule of exam. Before the governor heard their voices, गवर्नर ने ऑलरेडी ऑन कर रखा था जो रिकॉर्डर था. he was able to look at the things. तो उन्होंने आवाजें सुनी and it was clear. उन आवाजों को सुनने के बाद जो भी वॉइस आ रही थी, साउंड आ रही थी, तो क्लियर था कि एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होने जा रहा है पर बी मोर देन अ लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे. कि जिस तरीके से इंक्वायरीज हो रही है, सर्च आउट हो रहा है, यानी कि इंस्पेक्शन हो रही है मैक्लेरी की, तो थोड़ा सा लेट होगा एग्जाम शुरू. आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. क्यों लेट हुआ था यहाँ इस पॉइंट पे, क्योंकि बेटे जो प्लानिंग बनाया था उस प्लान के अकॉर्डिंगली, उस प्लान में ये नहीं उनको आइडिया था कि मैक्लेरी की भी इंस्पेक्शन की जाए. लेकिन इमीडिएटली दैट पर्टिकुलर आइडिया वाज हाईलाइटेड बाय गवर्नर. हो सकता है कि मैक्लेरी की किसी चीज का वो मिसयूज ना कर दे. तो जब मैक्लेरी की इंस्पेक्शन होते होते आई थिंक द टाइम वाज
9:18 and paper was to be started at 9:15. तो अभी और टाइम लगना था. I was able to look at that particular point. I think there is no doubt so far as this particular paragraph is concerned. Let us move for the next. Now we are going to study about the interaction of events and mimicry. अब इन्विजिलेटर और इवेंट्स की जो कम्युनिकेशन है हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं. जस्ट लुक एट दिस वेरी सिंसियर. You got a watch. Here McCleary wanted to just inquire from Evans whether he was with watch or not. नहीं पूछ रहे हैं या McCleary जी की घड़ी है आपके पास? Watch you are able to understand? Evans, yes sir. The reply of Evans was in affirmative. तो हाँ सर है मेरे पास watch. McCleary. Are you telling you when to start and again when you have 5 minutes left? All right. Silence. Just look at the dialogue of McCleary. Was just instructing Evans. Evans, he wanted to highlight that particular point that he would be telling him. He means you and he means him here. We look at indirect speech of this particular dialogue. When to start? कहते Evans अभी मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूंगा कि कब आपने पेपर स्टार्ट करना है. And again when you have 5 minutes. जब लास्ट आवर्स होंगे यानी लास्ट मिनट्स होंगे 5 मिनट पहले मैं इंस्ट्रक्ट कर दूंगा कि बेटा टाइम टू क्लोज द पेपर. I think you are able to look at this particular point. All right. It's taking confirmation by just using these words. That's all right. Then there was silence. I think you are able to understand this particular dialogue. Next, again, McCleary. There's plenty more. This writing paper. Should you need it? Here, one more dialogue was added by McCleary. McCleary जी क्या हाईलाइट कर रहे हैं कि इवेंट्स पेपर की परवाह ना करियो और भी बहुत सारे आंसर शीट्स हैं मेरे पास सप्लीमेंट्री आंसर शीट्स हैं एबल टू लुक एट. वो अगर यूज करना चाहे तो और भी डिमांड कर सकता है. He wanted to just look at that particular point. यहाँ मैक्लेरी जी इवेंट्स को कह रहे हैं कि पेपर मेरे पास और भी है कि अगर तुझे सप्लीमेंट्री आंसर शीट्स की जरूरत होगा तो डिमांड कर सकता है. Again there was silence. I think everything was going on in a good way. यानी कि पेपर लेट हो रहा है बाकी कोई इंटरेक्शन में कोई नेगेटिविटी नहीं है. Again dialogue of McCleary. Now write the name of the paper 021-1 in the top left hand corner. Now, instruction was given by McCleary to Evans. कि Evans ऐसा कर जो टॉप कॉर्नर है लेफ्ट साइड में पेपर का कोड लिख इसमें यानी पेपर का जो नंबर है 021-1 लेफ्ट कॉर्नर पे उसको हाईलाइट कर उसको लिख कि जो बोर्ड का पेपर होता है कोई भी पेपर होता है उसका कोड होता है. यू विल हैव टू लुक एट. Again McCleary was giving instruction in the top right hand corner write your index number -313. तो बेटे ऐसा कर जो 313 कोड नंबर लिख यानी कि इंडेक्स नंबर लिख टॉप राइट कॉर्नर पे. एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट और जो एक बॉक्स बना हुआ है राइट कॉर्नर पे यानी वहां पे क्या लिख राइट योर सेंटर नंबर 271. All right. Just looking at that. Now the formalities of filling the code number and what not is going on. I think you are able to understand this particular point. यानी McCleary जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अपना पेपर नंबर इंडेक्स नंबर और सेंटर नंबर फिल करो. Just giving proper instruction. Everything was okay up to this particular point. सब ठीक चल रहा था. इवेंट्स ने कोई इंटरप्शन यहाँ कोई क्रिएट नहीं किया. Look at the next. Be ready to look at the next. It is page number 78, dear students. So it was silence all around. Silence.
क्वाइट एनवायरनमेंट था, कोई आवाज नहीं थी उसके बाद। द टाइम वाज 9:20 AM, so time was 9:20. McClary, I'm now going to dash dash dash. Here McClary wanted to highlight some point कि मैं start करने जा रहा हूँ paper. He wanted to highlight events. So not going to stay. There is he. Just look at the things. यहाँ E का मतलब he है. He's not going to stay. Where is he? तो यहाँ events थोड़ा सा trouble में है और वो McClary से पूछ रहा है कि ये यहीं पे खड़ा रहेगा, यानी कि स्टीफेंस भी सेल के अंदर होता है। न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर था, आपने बिगनिंग में पढ़ा है, वो भी सेल के अंदर था। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि ये यहीं पे खड़ा रहेगा। He Vance was feeling irritated to look at Stephens. I think you are able to understand the shortened form. और मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपने एग्जाम में shortened form यूज किया, आपके मार्क्स कट जाएंगे। Don't use it. ये जो चैप्टर है, इट इज वेरी लेंथी चैप्टर, इसके कारण जो ऑथर है उसको ये हाईलाइट करनी पड़ी है शॉर्टन फॉर्म, तो हमें राइट नहीं। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। McClary, I don't know about that. I dash dash dash. Now just look at the reply of McClary. जब इवेंस पूछते कि ये यहीं खड़ा रहेगा, यानी कि स्टीफेंस यहीं रहेगा सेल के अंदर जब मैं पेपर करूंगा, मैक्लरी कहते हैं कि मुझे नहीं पता। I dash dash dash. You are able to understand Stephens. मैं पूछ देता हूँ, यानी I dash dash का मतलब देखिए, स्टीफेंस की जो डायलॉग है उसको देखिए। Mr. Jackson's given me strict instructions to dash dash dash. Stephens wanted to highlight the point कि मिस्टर जैक्सन की इंस्ट्रक्शन है कि मैं सेल के अंदर ही रहूंगा जब तक पेपर खत्म नहीं होता। कहते कि मुझे इंस्ट्रक्शन है इससे अपने सीनियर ऑफिसर से। सीनियर ऑफिसर कौन होता है उनका? मिस्टर जैक्सन, बिकॉज ही वाज सीनियर टू स्टीफेंस। स्टीफेंस वाज न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर। कहते मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि मैंने सेल के अंदर ही रहना है जब तक पेपर खत्म नहीं हो जाता। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आवर्स कहते हैं कि मुझे इंस्ट्रक्शन है कि मुझे सेल के अंदर ही रहना है। I think you are clear so far as this particular sentence is concerned. Events. How am I supposed to concentrate on my exam with someone breathing down my neck? Christ, sorry sir, I didn't mean. I just look at the explanation of this particular dialogue. तो यहाँ पे extreme level of irritation shown by Evans. क्यों? To observe the presence of Stephens in the cell. जब स्टीफेंस ने डिक्लेरेशन कर दी भी मुझे तो यही रहना जब तक पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता। तो देखिए क्या बोल रहे हैं इवेंस जी। इवेंस जी कह रहे हैं कि मैं पेपर के लिए कंसंट्रेट कैसे करूंगा विद समवन ब्रीथिंग डाउन माय नेक। बेटा मीनिंग लिख लीजिए पहले इस इडियम का, ब्रीथिंग डाउन माय नेक। जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर। तो ब्रीथिंग डाउन होता है कि कोई किसी के सिर पे खड़े होने को बोलते हैं। यू विल हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर इडियम इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। तो कहते हैं कि अगर मेरे सिर पे कोई खड़ा रहेगा तो मैं पेपर कैसे करूंगा। I think he wanted to highlight that particular point that he could never be able to concentrate. Temptation of exam. If Stephens would be in his cell. Christ. Christ word क्यों यूज किया गया और एक्सक्लेमेशन जैसे आप कहते हैं हे भगवान। कहता है कि हे भगवान अगर मेरे सिर पे कोई खड़ा होगा तो मैं पेपर पे कंसंट्रेट कैसे करूंगा। सॉरी सर, आई डिडंट मीन, जस्ट एक्सप्रेसिंग हिज रिग्रेट। ये वो जो गलत तो बोला उसने, क्योंकि ये फॉर्मल वर्ड्स नहीं है जो बोल रहा है कि मेरे सिर पे कोई खड़ा होगा तो मैं पेपर कैसे करूंगा, टेम्पटेशन कैसी होगी, कैसे कंसंट्रेट करूंगा। सो दैट इज व्हाई जस्ट फीलिंग
सॉरी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था. So I think you are able to understand up to this particular point. There is no doubt in that. The governor reached for the phone. Jackson, good. Get Stephens out of that cell, will you? I think you're perhaps overdoing things. अब सारी जितनी भी बातचीत थी, जो भी इंटरेक्शन थी, मिक्लेरी की, इवेंस की, स्टीफेंस की, डायरेक्टली गवर्नर जी सुन रहे थे. बहुत ज्यादा क्यूरियस थे उस पेपर को लेके, बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक थे कि कहीं ये फेलो कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करके प्रिजन का नाम बदनाम करके और गवर्नर की इंसल्ट करके भाग ना जाए. ही वाज टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. खुद देख रहे थे, वो सुन रहे थे क्या बातचीत चल रही है. आई थिंक यू आर एबल टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो अब गवर्नर जो थे वो फोन की तरफ गए. लैंडलाइन का फोन होता है, यू आर एबल टू लुक एट. सेल फोन नहीं होता जेल में, प्रिजन में फोन होते हैं जिसको रखा जाता है, तो उसके लिए जाना पड़ता है. कॉल अगर हमने करना, वो गए. तो जैक्सन, फोन किया जैक्सन को उन्होंने. हाँ गुड, ठीक है, अरेंजमेंट तो सही किया हुआ है. गेट स्टीफेंस आउट ऑफ दैट सेल, विल यू? कहते यार एक काम कर, स्टीफेंस को इंस्ट्रक्ट करके वो सेल से बाहर चला जाए. क्योंकि इस पॉइंट पे उनको लगता है कि ये इवेंट सही कर रहा है. कई बार हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते कि अगर ज्यादा लोग जो हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो यहाँ गवर्नर को लगता है कि इवेंट सही कर रहा है जो भी कर रहा है. आई थिंक वी आर परहैप्स ओवरडूइंग थिंग्स. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं. ओवरडूइंग थिंग्स होता है जब एक्सट्रीम लेवल की जो आई थिंक डिसिप्लिन क्रिएट किया जाता है, तो शायद हम कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं जितना कि हमें स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए. I think you are able to understand up to this particular point. There's no doubt in that. Look at the next. As you wish, sir. Just look at the reply of Jackson here. I wanted to highlight that particular point कि गवर्नर सर ओके, जैसी आपकी मर्जी सर. क्योंकि यहाँ पे गवर्नर ने इंस्ट्रक्शन दी जैक्सन को कि स्टीफन को बोल के चल भी तू बाहर जा. पहले क्या इंस्ट्रक्शन थी गवर्नर की कि स्टीफन प्रिजन सेल में ही रहेगा इवेंस की जब तक पेपर कंप्लीट नहीं होता. लेकिन वो बात सुनने के बाद गवर्नर को ये फीलिंग आया कि कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं. छोड़ो, स्टीफन अगर नहीं भी होगा सेल में तो कुछ नेगेटिविटी तो क्रिएट नहीं होने वाली. आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो उनको ये फीलिंग आ रही कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, क्योंकि एबल टू लुक एट द थिंग्स. ये हमने ज्यादा ही कुछ स्ट्रिक्टनेस क्रिएट किया हुआ है, स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है. तो आई थिंक ऑर्डर ऑफ गवर्नर वाज फॉलोड रिस्पेक्टफुली बाय जैक्सन. उनका ठीक है सर, जैसा आप चाहते हैं वैसे कह देता हूँ. गवर्नर हियर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल. और गवर्नर ने सुनी एक्सचेंजेस इन द सेल. एक्सचेंजेस होता है कि जब इंस्ट्रक्शन दी जैक्सन ने इसको स्टीफन को कि गवर्नर जी का ऑर्डर है कि आप बाहर सेल में नहीं. Here the door clang once more. और गवर्नर को एक और आवाज आई दरवाजा बंद होने की. क्लैंग होता है जस्ट साउंड ऑफ द डोर क्लोजिंग और ओपनिंग. बेसिकली क्लोजिंग में ज्यादा होती है. प्रिजन डोर्स you might have observed. And here McCleary announced that the examination had begun at last. तो गवर्नर जी यहाँ पे सुन रहे थे डायरेक्टली. McCleary, the invigilator, had instructed Evans that paper started, had begun. स्टार्ट हो चुका है पेपर. तो कितने बजे पेपर स्टार्ट हुआ था? You will have to look at this particular. It was 9:25 a.m. and there was a great calm. The paper was to be started at 9:15 a.m. but it was started at 9:25 a.m. and there was a great calm all around. The environment was very cool and calm. Quiet environment was there. अब देखते हैं आगे कि कूल एंड काम इन्वायरमेंट कितनी देर तक रहता है. पेपर शुरू हो चुका है and everything is okay.
और हर चीज डायरेक्टली जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है वो ऑब्जर्व कर रही है, गवर्नर जी सुन रहे हैं हर चीज को जो वहां चल रही है. एंड आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. अब चलते हैं व्हाट हैड हैपेंड आफ्टर 15 minutes of the beginning of examination. 9:40 पे क्या हुआ? 9:25 पे पेपर स्टार्ट हुआ था ना. देखते हैं. Let us look. Be enthusiastic. At 9:40 a.m., the examinations board ran through, and the assistant secretary with special responsibility for modern languages asked to speak to the governor. What had happened at 9:40 a.m.? It's a call. कॉल आती है. कहां से आती है? यू विल हैव टू लुक एट द थिंग्स फ्रॉम द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस. कौन सी डेजिग्नेशन थी जहां से कॉल आई थी? एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से कॉल थी, बोर्ड से कॉल थी, जहां से पेपर के लिए अपीयर हुए थे इवेंट्स. तो असिस्टेंट सेक्रेटरी की कॉल थी, क्योंकि स्पेसिफिकली अपॉइंट किया गया था जिसकी स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी थी टू लुक एट modern languages. Modern languages, you are able to look at the things. German was also one of the modern languages. Modern languages में ही आती थी जर्मन. तो वहाँ के असिस्टेंट सेक्रेटरी जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से था उनकी कॉल थी. तो उन्होंने asked to speak to the governor. Wanted to speak to the governor. गवर्नर से बात करना चाहते थे. The examination had already started, no doubt. Look at the first sentence spoken by the secretary, that is the assistant secretary. क्या बोला उन्होंने गवर्नर जी से जब उन्होंने बात शुरू की? उन्होंने कहा कि पेपर तो स्टार्ट हो चुका होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. A quarter of an hour ago. Quarter of an hour क्या होता है बेटा? There are 60 minutes in an hour. और इसको if we divide it with 4, 15 multiplied by 4 is equal to 60. तो quarter of an hour होता है 15 minutes. तो कहते हैं पर 15 मिनट पहले स्टार्ट हो चुका है. ये गवर्नर ने आंसर दिया, क्योंकि जब क्वेरी किया असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कि गवर्नर साहब पेपर तो स्टार्ट हो गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. पेपर का टाइम जो था वो 9:15 था. इट वाज 10 मिनट लेट. इट वाज जस्ट स्टार्टेड 10 मिनट लेट. तो 15 मिनट पहले पेपर स्टार्ट हो चुका है. गवर्नर ने आंसर दिया किसको? असिस्टेंट सेक्रेटरी. यस. वेल, देयर वाज अ करेक्शन स्लिप which some fool had forgotten to place in the examination package. गवर्नर साहब एक करेक्शन स्लिप है जो कि उस पैकेट में होनी चाहिए थी जिसमें कि क्वेश्चन पेपर था. यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहे हैं कि सम फूल का मतलब जिसने भी ये अरेंजमेंट किया है पेपर का, प्रॉपर वे से अरेंज नहीं किया, वो स्लिप डालना भूल गया उसमें पैकेट में. अगर प्रिंटिंग मिस्टेक होती है पेपर में तो ऑटोमेटिकली तो उसमें ही करेक्शन करके डालना है, कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी. बोर्ड वाज एबल टू रिकॉग्नाइज कि देयर वाज अ लिटिल बिट मिस्टेक इन द पेपर. कहते कोई फुलिश, यानी जिसने भी ये असाइनमेंट हैंडल किया प्रॉपर वे से नहीं किया, वो भूल गया उस स्लिप को उसमें डालना, करेक्शन स्लिप. To place in the examination package. I think you are able to understand. Very brief. थोड़ा सा error है, यानी कि ज्यादा mistake नहीं है. Little bit error is there in question paper. Just look at the next dialogue. Could the governor please? Yes. The governor साहब ये correction slip पहुंच सकती है इवेंट्स के पास, ताकि उसका कोई आंसर गलत ना हो जाए. अगर कोई ग्रामेटिकल या कुछ मिस्टेक होता है, प्रिंटिंग एरर होता है, तो एक जो एग्जामिनेशन अथॉरिटीज होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको करेक्ट करें. तो स्लिप कहते पैकेट में डालना भूल गया जिसने भी ये अरेंजमेंट किया है. तो सर गवर्नर साहब अब हो सकता है ये अरेंजमेंट. Oh, just look at the reply of
Governor here, be ready to listen the things. Yes, of course. The governor was giving assurance, हाँ कर ली. Just replying in affirmative कि हाँ कोई बात नहीं. तो पूछा देते हैं events के पास. I will put you straight through to Mr. Jackson in D wing. Hold the line a minute. They were just talking telephonically. I think you are crystal clear about this particular point. गवर्नर साहब कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, अगर कोई ऐसी मेजर एरर है पेपर में तो उसको करेक्ट करवाना तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, निसंदेह वी विल डू. तो कहते हैं मैं डायरेक्टली बात करवा देता हूँ आपकी मिस्टर जैक्सन से डी विंग में. लुक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो वो इंस्ट्रक्ट करते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड से, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, कहते हैं कि जस्ट होल्ड द लाइन फॉर अ मिनट. कहते हैं कि थोड़ी देर होल्ड कीजिए लाइन को, मैं अभी आपकी किससे बात करवाता हूँ. वांटेड टू हाईलाइट दैट जैक्सन से. किस कंसर्न किस कॉन्टेक्स्ट बात होनी थी कि उस करेक्शन स्लिप को कैसे हाईलाइट करना है, कैसे उस करेक्शन स्लिप को इवेंट्स तक पहुंचाना है. I think there is no doubt so far as this particular point is concerned. So time says that we must close this particular lecture. Number of tough words. I think you're able to look at the meaning of each and every word. There is no doubt in that. But better try your best to read some portion of this particular lesson because it's very lengthy chapter. Otherwise, it will take a few more lectures. I don't want to skip anything. So this is all for today. It's time to close the lecture. Already the time is 12:25. Any doubt, any queries? You just write to us. Thank you. Thanks.